एक्सरसाइज 1.4 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ p/q ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ q not equal to 0 ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ p/q ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ p/q ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ q not equal to 0 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ p ਤੇ q ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰ। p ਤੇ q ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰ। ਤੇ ਜੋ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। या दूसरी तरफ तो अपने को और गल बोली सी कि अगर किसी दा भी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो रहा है या तो की हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है फिर भी हम की बोलेंगे रैशनल बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है फिर भी उन्होंने की बोलेंगे इररैशनल नंबर। ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर कोई नंबर टर्मिनेट कर गया अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया तो तुसी पॉइंट ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगेन अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ p/q ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ p/q ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ फिर तो की है रैशनल नंबर जिवें कि मान लो √1 1 आ जाऊगा √4 2 आ जाऊगा √9 3 आ जाऊगा √16 4 आ जाऊगा। रूट दे अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फिर तो की हुआ रैशनल नंबर। क्यों क्योंकि एदा रूट परफेक्ट निकल जाऊगा लाइक एज 1 2 3 4 तो की हो जाऊगा रैशनल p/q च लिख सकते हो। बट अगर रूट दे अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है लाइक एज √2 आ गया √3 आ गया √5 आ गया ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ਆਊਗੀ। ਅਗਰ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ p/q ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਡੈਟਸ ਮੀਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। मतलब अलग-अलग फॉर्म च ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ q not equal to 0 या ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨॉन टर्मिनेटिंग ਹੋਣ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ √5 ਚੈੱਕ ਕਰੋ √5 रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है √5 की एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं पता 2.236 आगे चलती जाऊगी ये ना तो टर्मिनेट कर दी और ना ही रिपीट कर दी इस करके √5 की है इररैशनल नंबर है। और अगर इररैशनल नंबर च रैशनल नंबर चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो फिर वो की रहता है इररैशनल ही रहता है फिर एक ही रहता है इररैशनल ही कुछ नहीं होता √5 से 2 मतलब 2 - √5 करो √5 की जो ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता 2 चो ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ √5 ਵੈल्यू 2.36 ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। अगर ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। रैशनल ते इररैशनल उत्ते अगर तुसी कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो नॉलेज नहीं दस रहा मान लो तुसी रैशनल च इररैशनल ऐड कर रहे हो रैशनल च इररैशनल सबट्रैक्ट कर रहे हो इन्हां दी मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्हां दी डिवाइड कर रहे हो आंसर हमेशा क्या होगा इररैशनल होगा। लेकिन एक गल दा ध्यान रखियो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ क्योंकि अगर तुसी 0 दी
√5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ 0 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ, √5 ਇਜ਼ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 0 ਹੀ ਹੈ ਤੇ √5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ कुछ भी है √3 या √2 कुछ भी। अगर रैशनल ते इरैशनल उत्ते कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, रैशनल ते इरैशनल प्लस कर रहे हो ता भी इरैशनल होगा, सबट्रैक्ट करोगे ता भी इरैशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इरैशनल होगा, लेकिन पूरे जो रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर पूरे रैशनल नंबर 0 हो गया तो की बन जाएगा रैशनल नंबर बन जाएगा। अगेन डिवाइड विच गल करा, वैसे रैशनल ते इरैशनल दी डिवाइड हमेशा इरैशनल आउगी, लेकिन अगर रैशनल नंबर 0 होया लाइक 0 एक रैशनल है, √5 एक इरैशनल है, दोनों की डिवाइड की आ गई 0 व्हिच इज रैशनल, व्हिच इज रैशनल। मतलब 0 वाला सिस्टम तो ना मल्टीप्लाई डिवाइड से होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर 0 एक रैशनल है लेकिन √5 की इरैशनल है, दोनों की प्लस करो √5 आया व्हिच इज अगेन किया इरैशनल। मतलब प्लस माइनस ता रैशनल ते इरैशनल उत्ते जैसा मर्जी ऑपरेशन लगा दो, जैसा मर्जी नंबर होवे वो हमेशा क्या हुआ इरैशनल होगा, लेकिन मल्टीप्लाई ते डिवाइड से भी इरैशनल नंबर ही आऊगा एक्सेप्ट किस नालों अगर रैशनल नंबर केड़ा ले लिया आपा 0। बट ये सिर्फ तुहाडे एक्स्ट्रा नॉलेज ਲਈ है, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹੈ इरैशनल नंबर, ਇਹ ਕੀ ਹੈ इरैशनल। बट अगर जब तुम एक्स्ट्रा बुक करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जो मैं करना होगा समझ आ गई। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 3 √23 ਦੇਖਣ ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ √23 ਆ ਜਾਤਾ ਭਈ ਇਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਗਾ, लेकिन चेक करो -√23 ਨਾਲ √23 कट गया कितना आ गया 3 की है रैशनल, की है रैशनल। मोर ओवर ए कौन हैगा नेचुरल नंबर, मोर ओवर एक ही है होल नंबर, मोर ओवर एक ही है इंटीजर, एक ही है इंटीजर एंड मोर ओवर एक ही है रियल नंबर, बट ये इरैशनल नहीं है, एक ही है रैशनल, एक ही है रैशनल। समझ सकी आप उसके बाद भैया हां जी रैशनल को p बाय q इसको p बाय q में लिख सकते हैं, लाइक ऐसा आप 3/1 लिख सकते हो, 3 को 9/3 लिख सकते हो, 12/4 लिख सकते हो, सी बच्चों में आप लिख सकते हो, वेयर p एंड का वन इंटीजर। ओके 2√7 हां जी हां जी 3/1 आ गया, सो इट इज अ रैशनल, सो इट इज देखन जो √7 आ रहा है तो अपन को शायद लगता है ये इरैशनल होगा, लेकिन चेक करो √7 और √7 कैसे क्या आ गया 2/7, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ p by q ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ 1/√2 ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, √2 ਕੀ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। रैशनल ते इरैशनल उत्ते तुसी कोई मर्जी ऑपरेशन लगाओ, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टी करो चाहे डिवाइड करो, बस मल्टी ते डिवाइड से 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमेशा की हुआ हो इरैशनल ही रहूगा। हुन अगर 1/√3 करोगे वो भी क्या हुआ इरैशनल ही आउगा। समझ गए पाई 2 पाई की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈक्ट नहीं होती 3.14 के चलती रहती है 3.1412 चलती रहती है। पाई क्या है इरैशनल नंबर है, पाई क्या है इरैशनल। अगेन वही गल आ गई इरैशनल नंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, रैशनल ਤੇ इरैशनल ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो चाहे मल्टी कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, हमेशा की ਹੁੰਦਾ ਉਹ इरैशनल ही ਹੁੰਦਾ है, बस मल्टी ਤੇ डिवाइड ਚ 0 ਦਾ ਕੇਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, 0 ਦਾ ਕੇਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ इरैशनल। 22/7 ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 22/7 ਪਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਤਾਂ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ 3.14 ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.1428 ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਨॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा ਨਾ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2 -√5 ਹੈ, ਇਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ √5 ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਪੂਰੇ √23 ਨਾਲ √23 ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਪੂਰੇ √7 ਨਾਲ √7 ਕੱਟ ਕੇ 2/7 ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ। 1/√2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, 2π ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ।
समझ जागी ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 11th एग्जांपल है इन्हें चेक करो 7√5 7/√5 √2 + 21 पाई -2 ये सारे इरेशनल है या नहीं चेक करो सारे उसी तरीके नाल √5 इरेशनल है रैशनल नाल मल्टीप्लाई कितनी तक की हुआ इरेशनल √5 इरेशनल है 7 नाल डिवाइड 3 की हुआ इरेशनल √2 इरेशनल है 21 नाल प्लस कितनी इरेशनल पाई की है इरेशनल है 2 नाल माइनस कितनी इरेशनल तो इस करके सारे नंबर की है इरेशनल नंबर तब से एक गल कर सकते हो कि रैशनल ते इरेशनल उत्ते अगर तुसी प्लस कर दियो माइनस कर दियो या नॉन जीरो रैशनल नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दियो डिवाइड कर दियो नॉन जीरो रैशनल नंबर नाल मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर बोलता नॉन जीरो रैशनल नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दियो डिवाइड कर दियो ता जो आंसर आऊगा वो तो होगा इरेशनल ही आउगा गॉट इट नेक्स्ट हम 12th एग्जांपल चेक कीजिए 12th एग्जांपल है किन्हें ऐड करना है 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ अगर सबट्रैक्ट करना होता तो साइन चेंज करदा अगर ऐड करना तो पता साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती तो प्लस का प्लस हुन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ जिवें लाइक अगर ये क्वेश्चन होता 2x + 3y + 5x अगर ये क्वेश्चन होता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ इसका आएगा 7x + 3y 7x + 3y गुड 7x + 3y क्यों आएगा क्योंकि सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड होती है सिर्फ कौन ऐड होता है लाइक टर्म्स ही ऐड होती है उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ 2√2 और √2 इनको ऐड कर सकते हो 2√2 1√2 क्या आ गया 3√2 क्या आ गया 3√2 यही कटेगा वो माइनस प्लस से कटो प्लस जैसे चेक करो 3x प्लस अगर x हो सॉरी 2x प्लस x होता 2x प्लस x होता तो हम इसको क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं 2x प्लस x को क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं उसी प्रकार 2√2 और 1√2 को हम क्या लिखेंगे 3√2 लिखेंगे ये एक तरह से रूट को अपना x होएगा हाँ जी ये वो √3 बताओ उसको देखता हूँ आगे देखो जैसे 5√3 माइनस 3√3 5√3 - 3√3 कितना आ जाएगा 2√3 कितना आ जाएगा 2√3 जैसे अगर ऐसे होता क्वेश्चन 5y - 3y हम क्या लिखते हैं इसका आंसर 2y क्या लिखते हैं 2y ऐसे ही अगर 5√3 - 3√3 है तो कितना आ जाएगा 2√। आगे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते जैसे अगर क्वेश्चन आपको ये हुआ 3x + 2y इनका ऐड करके क्या आएगा बताओ जरा 3x + 2y नहीं ऐड होता आगे 3x और 2y ऐड नहीं हो सकते क्यों नहीं ऐड हो सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है सेम एज ये लाइक टर्म्स नहीं है तो आगे ऐड नहीं ठीक है 2√2 + 1√2 कितना हो गया 3√2 5√3 - 3√3 कितना हो गया 2√। एनी क्लियर है फंडा ट्वेल्थ एग्जांपल प्लीज आगे नेक्स्ट कीजिए 13th एग्जांपल 13th एग्जांपल है मल्टीप्लाई करना है 6√5 बाय 2√5 6√5 और 2√5 की क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया अब सुनो जैसे हमने 6x और 2x की मल्टीप्लाई करनी होती है कैसे करते हैं 6 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगा 12 x और x की मल्टीप्लाई क्या होगा x² क्या होगा x² सेम एज 6 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 12 क्या होगी 12 √5 और √5 की मल्टीप्लाई √5 और √5 की मल्टीप्लाई क्या होगी √5 का स्क्वायर
√5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। कैसे 5 होता है, रीजन सो जैसे √5 का स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर करना है, एक तो आप क्या सोच सकते हो √5 का स्क्वायर है दैट्स मीन √5 into √5 है, √5 into √5 दैट्स मीन √25, और √25 क्या होता है 5। और दूसरी बात आप क्या सोच सकते हो, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और a की पावर m ऊपर n, a की पावर m ऊपर n, हमने कल रूल किया इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, a की पावर m है। इसी प्रकार 5 की पावर 1/2 × 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये भी ऐसे तो यार तो हम ज्यादा बिना एक्सटेंड करे एक बात आप कह सकते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर जस्ट क्या रहता है 5, क्या रहता है 5। बट आपको कांसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों होता है। वे कोई भी तीनों में से कोई भी मैथ बता सकते हैं। हाँ जी, बस आप प्रैक्टिस को ऐसे ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। √5 का स्क्वायर 5 के इक्वल होता है, क्यों होता है, एक तो आप क्या लिख सकते हो √5 into √5 दैट्स मीन √25 दैट्स मीन 5, और दूसरे तो आप क्या लिख सकते हो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, इन शॉर्ट 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, √5 को √5 से किया √5 का स्क्वायर दैट्स मीन 5, और 12 5 जा क्या आ गया 60, 12 5 जा क्या आ गया 60। क्या किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है? नो सर। नेक्स्ट 14th एग्जांपल चेक कीजिए, 8√15 डिवाइड करना है बाय 2√3, दोनों की क्या करनी है हमने डिवाइड, 8√15 डिवाइड 2√, देखो वैसे अगर आपने 8y² और 2y की डिवाइड करनी है, 8y² और 2y की डिवाइड करो तो क्या करते हैं 2 को 1 से कट किया 4y² अपॉन y क्या आ गया y, क्या आ गया y, क्योंकि इनको अलग से डील करेंगे और इनको अलग से डील करेंगे। उसी प्रकार 8 डिवाइड बाय 2 ये तो क्या आ गया 4, √15 डिवाइड √3 √5 क्या आ गया √5, तो क्या आप ऐसे कह सकते हो √15 डिवाइड √3। हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया है, अगर पावर सेम हो लाइक एज a की पावर m डिवाइड b की पावर m, अगर पावर सेम हो तो पावर को लिख देते हैं हम 1 टाइम, अगर बेस में डिवाइड है तो बेस की क्या होगी डिवाइड, बेस की क्या होगी डिवाइड। वैसे यहाँ पे क्या है √15 और √3, अगर पावर सेम है यहाँ पे पावर रूट है यहाँ पे पावर रूट है, मतलब यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे 1/2 है, तो पावर को लिख दो 1 टाइम, पावर को लिख दो 1 टाइम, और बेस की कर दो डिवाइड 15/3, तो क्या आ गया √5। इन शॉर्ट आप डायरेक्ट कह सकते हो कि √15 डिवाइड √3 क्या आएगा √5। समझ रहे हो, कोई डाउट मतलब अंदर कटिंग होगी जी। √15 डिवाइड √3, अगर पावर सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर को 1 टाइम लिख के बेस की क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, सेम एज यहाँ पर पावर सेम थी तो पावर को 1 टाइम लिख के बेस की क्या कर दी डिवाइड, इन शॉर्ट क्या आ गया 5, क्या आ गया √5। गॉट इट? कौन सी चीज थी ये वाली चीज, 8 और 15 को किससे डिवाइड करना है 2√3 से, पहले 2 को 8 से डिवाइड कर दो क्या आ गया 4, अब √15 डिवाइड √3, पावर को बस आप एक बार लिख दो √15 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, क्योंकि हमने कल रूल किया अगर पावर सेम हो पावर को 1 टाइम लिख दो, बेस में डिवाइड हो तो बेस की कर दो डिवाइड, अगर पावर सेम हो तो पावर को 1 टाइम लिख दो, बेस में डिवाइड है तो इनकी क्या कर दो डिवाइड, और कैंसिल होगी क्या आ गया। गॉट इट? डाउट है कोई? हाँ जी, 14th क्वेश्चन सभी को क्लियर है? एग्जांपल यस आगे जा कीजिए 15th एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 15, फर्स्ट पार्ट है 5 + √7 2 + √5। देखो हमने 8th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज की थी
तो कैसे सुनो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर A square plus B square plus 2AB। की थी हमने a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus B square minus 2AB। उसके बाद a प्लस b माइनस b a प्लस b a माइनस b तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस B square। a प्लस b का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी कब लगती थी? a प्लस b का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी कब लगती थी? जब हमने a प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अगर a प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करनी है, लाइक एज फर्स्ट अक्षर सेम है सेकंड अक्षर सेम है, तो हम पूरे का क्या डाल देते थे? स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में चेक करो, ना तो हमारा फर्स्ट अक्षर सेम, अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो ये मत सोचो कि हमसे 9th में होगी, डोंट वरी, आराम से सोचो। ना तो फर्स्ट अक्षर सेम और ना ही सेकंड अक्षर सेम। अगर ना तो फर्स्ट अक्षर सेम हो और ना ही सेकंड अक्षर सेम हो तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अगर ना तो फर्स्ट अक्षर सेम हो और ना ही सेकंड अक्षर सेम हो, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे? पहले 5 को पूरी ब्रैकेट के बाहर, 5 को पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस √7 को पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस √7 को पूरी। इतनी बात क्लियर है? पहले हमने 5 को पूरी ब्रैकेट के बाहर, उसके बाद √7 को पूरी ब्रैकेट। अब जिससे पूछा जाए प्लीज वही जवाब दे, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब। गौरव आप बताइए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? शुभनीत 5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पे एक बात का जवाब दो, 5 को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 5x। तो 5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या 5√5 नहीं आना चाहिए? क्या 5√5 नहीं आना चाहिए? क्योंकि जो ये रूट वाली टर्म्स है एक तरह की वेरिएबल की तरह ट्रीट हुआ, वेरिएबल की तरह ट्रीट। जैसे आप 5 और x की मल्टीप्लाई 5x ही आएगी, उसी प्रकार 5 और √5 की मल्टीप्लाई जस्ट 5√5 ही आएगी। √25 कब आएगा? अगर आपने √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना, फिर आप होगे √25। क्यों? क्योंकि इनकी पावर सेम है, इसलिए आप पावर को वन टाइम लिख के बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पावर सेम नहीं है, यहाँ पर पावर बेस सेम है, जो बेस सेम है बेस को वन टाइम लिख दो, पावर की ऐड कर दो। कैसे लिखोगे? इसके पावर 1 है उसके पावर 1/2 है, तो कितना आएगा? 5 की पावर 3/2। बताओ क्या करोगे वहां? तो इन सिंपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने 5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 5√5 होगा, √25 नहीं होगा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? बेस की आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो अगर उनकी पावर सेम है। बेस की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो अगर पावर सेम है। अगर पावर सेम नहीं है तब बेस की मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। यहाँ पर पावर सेम नहीं थी इसलिए आप बेस की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट? तो 5 और √5 की मल्टीप्लाई 5√5 ही होगी। क्या आएगी? 5√5। समझ में आ गया? √7 और 2 की मल्टीप्लाई √7। बहुत अच्छे। √7 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? √7। क्योंकि अगेन इनकी पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो बेस की आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको जस्ट क्या लिखना पड़ेगा? 2√7 तो पहले 2√7 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे 275। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, होशियार हो चुके हो। √7 को √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पावर को वन टाइम लिख दो, बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30। अब कोई समझदार व्यक्ति मुझे ये बताए ऐड करके कितना है? हो गई नहीं ऐड। क्यों? लाइक टर्म्स नहीं है। बहुत समझदार व्यक्ति यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ऐड नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं लाइक टर्म? यहाँ पे √5 है, क्या √5 वाली कोई टर्म है? यहाँ पे √7 है, क्या √7 वाली कोई टर्म है? यहाँ पे √35 है, क्या √35 वाली कोई टर्म है?
यहाँ पे जस्ट 10 है, कांस्टेंट है, क्या कोई कांस्टेंट जस्ट 10 वाली टर्म है? कैसे होगा? तो कैसे होगा? लाइक इसका मैं अगर आपको बताऊं 10x + 5x + 2y + z, अगर ऐसे कहते हैं z को आप ऐड कर ही नहीं सकते इनको, आप ऐड कर ही नहीं सकते, इसका आंसर ऐसे ही लेगा, ठीक है ना? कोई लाइक का आंसर नहीं है, है जी, यही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर यही है। समझ में आई बात? तो आपने जस्ट इतना करना है, ये सारा समझाने के लिए था, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले 5 को पूरी ब्रैकेट के बाहर, फिर √7 को पूरी ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 5√5, यहाँ पे 2√7, यहाँ पे √30। सिर्फ अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना है, बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग, आपका आंसर सिर्फ 2 लाइंस है। गॉट इट? साइन माइनस क्या होता है? है जी, दोनों साइन माइनस क्या होता है? फिर क्या होता है? यहाँ पे -√7 वो कर दे, माइनस वैसे सिंपल होता है इसमें। -30 जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, फाइव प्लस √5, 5 माइनस चेक करो, ये तो भी हमको आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। वेरी गुड, 25 - 5 बहुत अच्छा। अब सुनो कैसे, जिनको नहीं पता चला बिल्कुल प्लीज कोई भी ना बोले, जिनको नहीं पता चला उनको पता चल गया, ठीक है? फर्स्ट अक्षर सेम है, फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है। अगर फर्स्ट अक्षर भी सेम हो, सेकंड अक्षर भी सेम हो, बट साइन सेम ना, लाइक एज a + b a - a + b - a, इस आइडेंटिटी की क्या पहचान है? फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन भाई साइन सेम नहीं है, साइन चेंज है। यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है, साइन चेंज है। अगर a + b - b हो तो आप क्या करोगे? जो फर्स्ट अक्षर है उसका स्क्वायर माइनस लिख के, जो सेकंड अक्षर है उसका स्क्वायर। गॉट इट? वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन चेंज है, तो आप वो आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या करेगा? फर्स्ट अक्षर का स्क्वायर माइनस लिख के सेकंड अक्षर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5। एक तरीके से कह सकते हो √5 का स्क्वायर, दो मेथड बताया, √5 का स्क्वायर, या तो आप कह सकते हो √5 का स्क्वायर मतलब √5 * √5, दैट्स मीन √25, और √25 मतलब 5, √5 का स्क्वायर है तो √25 लिख दो, √25 कितना होगा? 5। बात तो 5 की आएगी। या आप इसको कैसे समझ सकते हो? √5 का स्क्वायर है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर, 1/2, ऊपर क्या है? स्क्वायर, इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5 की 1/2 से 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या आ गया? इन शॉर्ट आप दिमाग में ये रख सकते हो, अगर आपने √5 का स्क्वायर करना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और आपका जस्ट क्या आ जाएगा? बट क्यों कैंसिल होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। समझ में आई? ये अगर क्यूब फिर नहीं होता, फिर नहीं होता, तब आएगा 5√5, वो अभी धीरे धीरे चलेगी। 25 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 20। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो डाउट है तो प्लीज बता दो। ओके है, डन। नेक्स्ट चेक करो। √3 + √7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे चेक करो, अपने आप a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अगर किसी को अभी भी इस चीज में कंफ्यूजन है कि भाई a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला जस्ट ये होना चाहिए कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर।
अगर किसी को अभी भी इस चीज में कंफ्यूजन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमें ये फॉर्मूला बताया गया है कि ये फॉर्मूला क्यों होता है, ये होना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करो। पहले a को पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस b को पूरी ब्रैकेट के बाहर, a को पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस b को पूरी ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया ab, यहाँ पे क्या आ गया ba, यहाँ पे क्या आ गया b स्क्वायर। अब क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ab प्लस ba, ba कह दो ab कह दो एक ही बात है, ab प्लस ab, एक ab कितने ab हो गए 2ab, कितने हो गए 2ab। दैट्स मीन ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता। समझ में नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। तो इसी फॉर्मूले के चलते हुए तो चेक कीजिए √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2√3 into 7। अब निशान जिससे पूछा जाए वही देखो क्या है √9 मतलब अरे √9 मतलब 3 आप सीधा कह सकते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3। √7 का स्क्वायर 49, √7 का स्क्वायर √49 मतलब 7, या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ गया 7। तो √3 into √7 क्या आएगा बताओ 221 क्योंकि 2 का 2 √3 को √7 से क्या क्या आ गया 21। हाँ जी नहीं, यहाँ पे रूट का स्क्वायर नहीं है, √3 into √7 पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पावर को 1 टाइम लिखो, जैसे हमने उसमें किया था, पावर सेम है तो पावर को 1 टाइम लिख दो, बेस में मल्टीप्लाई तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा 2√21। समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो सर। अब चेक करो 3 और 7 कितना हो गया 10 प्लस 2। प्लीज एक बात सुनो, इसके बाद कई जने क्या करते हैं 10 प्लस 2 12 इतने होशियार इतने तेजस्वी लोग हैं, ठीक है, कि 10 प्लस 2 क्या लिख देते हैं 12। प्लीज इसको मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, उसका रीजन सुनो। 2 की पहले √21 से मल्टीप्लाई है, 2 की 10 से प्लस नहीं है। आपने छोटे होते फोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, फोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड वगैरह, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, पहला हक पहली प्रेफरेंस हमने मल्टीप्लिकेशन को दी है, पहली प्रेफरेंस हमने किसको दी है मल्टीप्लिकेशन को। तो हम मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखेंगे, 2 और √21 की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो इनकी प्लस भी नहीं हो सकती, इनकी प्लस भी नहीं हो सकती। दैट्स मीन ये ऐसी रहेगा 10 प्लस 2√21। समझ में आ गई बात? फोर्थ पार्ट चेक करो भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन चेंज है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन चेंज है, a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, साइन चेंज है, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 √11 का स्क्वायर 11 √7 का स्क्वायर 7 √7 का स्क्वायर 7 और 11 माइनस 7 4। गॉट इट? यस। अब देखो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल 16 जी, एग्जांपल 16 वो वो अलग कैटेगरी है जी, कैटेगरी वो वाइज। थर्ड क्वेश्चन हाँ जी,
3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस सो आराम से दूंगा ना तो फर्स्ट अक्षर सेम और ना ही सेकंड अक्षर सेम, ना ही फर्स्ट अक्षर सेम और ना ही सेकंड अक्षर सेम। दैट्स मीन कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब क्या करोगे? पहले 3 को पूरी ब्रैकेट के बाहर, फिर रूट 3 को पूरी ब्रैकेट के बाद फिर आराम से आराम से। अब जिससे पूछो सिर्फ वही जवाब पूरी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 रूट 3 का 2 करेंगे 2 रूट कोई भी करते हैं रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 6। प्लीज रूट लगाना मत भूलना। क्यों नहीं भूलना? रूट 3 टू रूट 2 अगर पावर से हो तो पावर को 1 टाइम लिखोगे, बेस की मल्टीप्लाई है तो बेस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रूट 6, तो क्या आएगा रूट 6 आगे ऐड होके क्या आएगा प्रशांत? ये आगे ऐड रहेगा नहीं, आगे ऐड नहीं होगा। क्योंकि सुनो ये लाइक टर्म ही नहीं है। हां लाइक यहाँ पे रूट 2 है लेकिन रूट वाली कोई टर्म नहीं है, रूट 3 वाली कोई टर्म नहीं है, रूट 6 है, रूट 6 वाली कोई टर्म नहीं है। 2 रूट 3 रूट 2 फिर तो जाता, फिर अपन क्या डाउट है? या अगर डाउट है? फिर रूट 6 नहीं आएगा। यहाँ पे रूट 6 इधर नहीं है। इधर रूट 6 चलो एक पल के लिए मान लेते हैं 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इनकी पावर सेम है? अगर इनकी पावर सेम नहीं है तो आप बेस की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? बेस की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो अगर पावर सेम। जितना जो जिन्हों ने 3 रूट 2 है, अगले टर्म में होते 3 रूट 2 फिर 6 ऐड रूट 2। अगर ऐसे हो लाइक एस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, आप इसको ऐसे सोचो जैसे 3x प्लस 3x होता तो क्या आता? 6x 6x। वैसे 3 रूट 2 कितना आता? 6 क्या आता? फर्स्ट पार्ट क्लियर है इसमें तो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 और अब क्या करेंगे? a स्क्वायर में पूरे a प्लस b का होल स्क्वायर है कि माइनस b का होल स्क्वायर है? फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन चेंज a प्लस b a माइनस b फिर a स्क्वायर माइनस b क्या होता है? फर्स्ट अक्षर का स्क्वायर माइनस सेकंड अक्षर का स्क्वायर। साइड में आप आइडेंटिटी जरूर लिखोगे, साइड में आप आइडेंटिटी जरूर लिखोगे a प्लस b a माइनस b। इट्स इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट इंपॉर्टेंट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 9 माइनस 3 6 9 माइनस 3 6 आगे थर्ड पार्ट चलिए। रूट 5 प्लस रूट 2 a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको क्या बताया मैंने? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सुनो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 into रूट 5 into ओके रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2 2 प्लस रूट 10 7 प्लस 2 रूट 10 होता है होता है बाकी ऊपर सिर्फ पावर इनकी सेम है, सिर्फ पावर इनकी सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई भी सिर्फ इनकी होगी। जिनकी पावर सेम है बेस की मल्टीप्लाई उन्हीं की होगी। एक बात हाँ जी चेक कीजिए। हाँ जी a प्लस b का स्क्वायर
which is equal to a square plus b square plus 2. Any doubt? नो डाउट रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 5 आ गया। रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 आ गया। 2 into रूट 5 into 2। अब बेस की मल्टीप्लाई तभी होगी अगर पावर सेम है। बेस की मल्टीप्लाई तभी होगी अगर पावर सेम है। यहाँ पे चेक करो, रूट रूट इनकी पावर सेम है तो इनकी पावर टेक करके इनके बेस की मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 10 आएगा, और 2 बाहर का बाहर। ओके उसके बाद 7 प्लस रूट 2 अब प्लीज शांत, अब प्लीज शांत। आगे क्या करता हूँ? नो 7 आएगा क्या लिखूं मुझे ये बताओ। 7 प्लस 2 रूट 10 है, इसके बाद क्या लिखूं? सेम ही आएगा बहुत अच्छा। इनकी प्लस नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। दिस इससे अवॉइड करना, 9 रूट 10 मत लिखना क्योंकि 2 की रूट 10 से मल्टीप्लाई यस, प्लस तो बाद में अकॉर्डिंग टू मोड वास्ट रूल। जी। इसका सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो चेक कीजिए। रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस फर्स्ट अक्षर सेम है, सेकंड अक्षर सेम है, लेकिन साइन चेंज है। a plus b which is equal to a square plus b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट, शुभ्रीत रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर 5 minus 2 रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 minus 2 3।